وعلیکم السلام جی بتائیے بھائی. الحمدللہ. ارے یہ تھا کہ مفتی صاحب کا نمبر چاہیے تھا یار بھائی. اب ہم کو تو معلوم نہیں ہے یار کہ کون اہل حدیث میں مفتی ہوں. کیا ہو گیا؟ ارے مسئلہ پوچھنا تھا یار. کیا پوچھنا ہے؟ نہیں آپ اگر فتوا دیں تو پھر آپ سے بات کریں. نہیں آپ فتوا دیں گے تو فتوا میرے بھائی ہاں تو مفتی کا کی بات کام ہے. نہیں ہے. تو نہیں سنو, ہم فتوا دے کے آپ کو بھائی ہم بتا دیں گے جو ہمارے عالم دین ہے. تو آپ اپنا مسئلہ بتا دیجیے, ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں. نہیں تو آپ ہمیں مفتی صاحب کا نمبر دے دیں. نمبر بھائی ہم نہیں دے سکتے نا, منع کیا انہوں نے کہا ہے کہ میرا نمبر کسی کو مت دینا. ہم خود ہی اس سے بہت کم ہی فون کرتے ہیں, بزی رہتے ہیں نا وہ. تو بھائی ارے تو بزی تو رہتے وہ ہم سمجھ رہے ہیں. تو پھر مفتی صاحب سے نہیں بات بنے گی تو پھر کیسے بنے گی آپ؟ تو ایسا کون سا بھائی اہم آپ کو مسئلہ آ گیا جس میں آپ کو ترنت فتویٰ چاہیے؟ نہیں ترنت کی بات نہیں ہے, وہ بھلے 10 دن کے بعد دے, لیکن بات ہم ان سے کریں گے. ہاں تو سوال کیا سوال تم سن لیں. سوال ہم آپ کو بھی نہیں بتائیں گے. تو بھائی اتنا چوری چھپے والا سوال ہے تو پھر بات ہی نہیں ہے. پھر ابھی آپ کو نمبر نہیں بتائیں گے. چوری چھپکا والی بات نہیں ہے. چوری چھپکا والی بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو انسان کا کوئی اگر مسئلہ ہے, مانی میرا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گا نا کہ بھائی مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے کسی عالم دین سے. تو یہ تو آدمی بتا ہی سکتا ہے نا. وہ تو بات تو ہمیں مسئلہ جو ہے پوچھنا ہے, ہمیں جو ہے مفتی سے بات کرنی ہے. ہم آپ سے کیا بات کریں گے؟ عظمت علی بھائی آپ ایک کام کیجیے, ٹھیک ہے, بولے بھائی. ٹھیک ہے آپ کسی اپنی ایریے کے جو بھی آپ کے میرے بھائی جو مسلک کے مفتی ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے. تو وہ تو ہم نہیں سنو بھائی, دیکھو آپ جب ہم نے آپ سے اصلاح کی بات کری تھی, اصلاح کی بات کر رہے ہیں, تو ہم جب تک ہم مفتی صاحب سے بات نہیں کریں گے, ہمیں تو مین مفتی سے مطلب ہے. بریلویوں کے مفتی سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ بریلویوں کا تو مطلب جو ہے ہم تو اسی پر ہے نا قائم. ہاں تو آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کی بات مانیں گے نا, اہل حدیث کی آپ کہاں سے مان لیں گے؟ ارے تو اہل حدیث سے کیوں؟ تو ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں نا, اہل حدیث کے اندر بھی کیا وہی بات ہے یا نہیں ہے, جو ہم جیسا کر رہے ہیں. بتائیے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. رہی بات فتوے کی, بھائی فتوا ہم نہیں دے سکتے, لیکن ہم آپ کو بتا تو سکتے ہیں نا کہ ہاں یہ مسئلہ بھائی صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا چلیے, آپ بتانا ہی چاہتے ہیں تو جیسے سب سے پہلا لفظ آپ سے سوال یہ ہے کہ اعلیٰ. سنیے آپ, اعلیٰ حضرت, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا, لیکن کسی نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں کہا ہے نا. تو اگر ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ بھائی دیکھیے, آپ نے کہا نا کہ جو اعلیٰ ہے, اعلیٰ حضرت ہے, کبھی کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں کہا. تو میں نے کہا تھا 6 مہینہ پہلے الحمدللہ کہ اعلیٰ جو ہمارے لیے جو بھائی اعلیٰ حضرت ہیں وہ ہمارے اللہ کے نبی ہیں. تو میں بھائی یہ پہلے بول چکا ہوں کہ جو سب سے اعلیٰ ذات ہیں انسانوں میں وہ ہمارے اللہ کے نبی ہیں. وہ اعلیٰ ذات, وہ اعلیٰ پر اس ذات پر نہیں نام, صرف جیسے ہم آپ کا نام لے اعلیٰ ابو خان, سنیے. نہیں تو میں اعلیٰ نہیں ہوں بھائی. ارے آپ نہیں, ہم آپ کو مثال بتا رہے ہیں. میں تو ایک ادنا ہوں, ادنا. ہاں ارے ہم مثال بتا رہے ہیں, ہم آپ کو نہیں کہہ رہے. نہیں مثال آپ ان کی دیجیے نا, احمد رضا خان صاحب. ہاں چلیے ہم, اچھا نبی کے علاوہ کسی اور کو اگر ایسا کہا جائے ہاں تو جائز ہے. ہاں جائز ہے بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جائے, اس کے بالکل جائز ہے بھائی, اعلیٰ کہا جائے تو بالکل جائز ہے. تو پھر یار اب اہل حدیث میں پھر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے, اور درجیش وغیرہ جو ہے اس پر جو ہے کام کشی کرتا ہے. نہیں, اللہ کے نبی کے میرے بھائی اگر ان کے سامنے ان کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو میرے بھائی کھڑا کر کے کہیں گے کہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں, ہم کو ان کی ہی دین اور ان کی ہی میرے بھائی کتب اور ان کے مطلب جو ان کے ماننا مذہب ہے اس پہ عمل کرنا ہے, تو پھر اس معنی میں تو بھائی اعلیٰ حضرت کہنا میرے بھائی غلط ہے. لیکن اب جیسے بھائی آپ کے ابا جان ہیں, میرے ابا جان ہیں, آپ کے دادا ہیں, میرے دادا ہیں, بہت بھائی وہ دیندار ہیں, اعلیٰ ہے, تو ان کو بھی ہم بول سکتے ہیں لقب میں کہ ہاں بھائی وہ اعلیٰ ہے. تو آج تک کسی بریلوی نے جو امام احمد رضا کو یہ کہا ہے کہ ہمارے نبی ہیں؟ نہیں,
उन्होंने खुद ही मेरे पे नबूवत का दावा किया है ना। आपके आला हजरत साहब उर्फ अहमद रजा खान साहब ने ये मेरे भाई कहा है कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर अमल करना, जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना, वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को एकदम मजबूती से पकड़ लो। और आला हज़रत क्या कह रहे हैं कि मेरे दीन और मेरे मजहब जो मेरी किताबों से कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो हो गया ना भाई ये। अच्छा हाँ, आप हाँ, डाका हो गया ना नबूवत पे। अच्छा, ये कर चुके हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि आपका दीन क्या है, आप जवाब दीजिए। क्या आपका दीन क्या है? भाई मेरा दीन इस्लाम है और मेरा जो मजहब है वो है कुरान और हदीस। आप ज्यादा नहीं, खाली जितना पूछे उतना ही। अगर हमने आपसे पूछा कि आपका दीन क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? भाई मैं कहूँगा मेरा दीन इस्लाम है। इस्लाम है। आपका दीन मजहब है। मेरा दीन मजहब है। अरे भाई, दीन इस्लाम मजहब है कि नहीं? नहीं, दीन अलग होता है, मजहब अलग होता है। अच्छा, मजहब अलग होता है। मेरा दीन इस्लाम है, जो मेरा भाई जो तरीका है, हाँ बोलिए। ठीक है, मनहज है, मजहब है, वो है भाई कुरान और हदीस। अरे हाँ भाई, तो आप सुनो ना, तो वही तो है कि हमारा तो वही आला हज़रत ने कहा कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। ये आपका लिखा हुआ है हयाते आला हजरत की जिल्द नंबर 4 में। अरे मेरे भाई, उतना मैं पढ़ा हूँ, मैं उतना सब देख चुका हूँ। मैं ये बता दीजिए, आला हजरत की किताबों से जो दीन साबित हो रहा है उस पर अमल करना फर्ज है, या अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी के फरमान से जो दीन साबित हो रहा है उस पर अमल करना ज्यादा फर्ज है? यार आप पहले सुनो, तो पहले अब हमारी बात सुनो भाई। बताइए ना। अपन खाली बात करेंगे तो फिर लंबी चौड़ी बात हो जाती है, फिर वो मजा नहीं आता है। तो भाई आप बिरादरी के ठेकेदार है, कैसे ठेकेदार हैं आप, ये बताइए। सुनो, हम आप ही से पूछ रहे ना। हमने आपसे कहा कि आपका दीन क्या है। भाई मैं आखिरी बार नहीं आपको बता रहा हूँ, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओ नहीं। मेरा दीन इस्लाम है और मेरा जो मजहब है वो है कुरान और हदीस। मजहब को अभी कुरान हदीस, ठीक है। आपने कहा कि मेरा दीन इस्लाम है और मजहब है। अच्छा, आप मजहब मेरा कुरान हदीस है। हाँ, कुरान हदीस। आपके कुतुब से जाहिर क्या है? तो मेरा कोई कुतुब ही नहीं है ना, मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात है वो जो किताबों से साबित है मैं उसको मानता हूँ। कुतुब कहाँ से चली है? ये जो कहाँ से चली है? हाँ, जैसे आला हजरत ने कहा कि जो मेरे कुतुब से जाहिर हो, यानी कि जो किताबों से जाहिर है, यानी कि जो भाई आला हजरत के इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी के पैदा होने से पहले जिन लोगों ने भाई मतलब जिस दिन पे अमल किया, क्या वो मेरे भाई बिल्कुल मेरे भाई बेकार दिन था? अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, इतराज तुम्हारा है, हमारा नहीं है। नहीं, इतराज आप खुद सोचिए। एक मिनट आप सुन लीजिए, मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ, फिर आप बिल्कुल आराम से बोलना, ठीक? सुनो, एक लाइन मेरी सुन लीजिए, फिर आप आराम से एकदम बोलिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? हमारे आपसे कोई मेरे भाई हाँ, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हाँ बोलिए। आला हजरत भाई ये कहते हैं कि मेरे दीन और मेरे भाई उनका जो मजहब है, ठीक, यानी कि उनका दीन और उनका जो मेरे भाई तरीका है, मजहब है, उस पर जो उनकी मतलब भाई जो कुतुब है उससे जो भाई वो जाहिर हो रहा है उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। यानी कि 5 वक्त की जो मेरे भाई जो अल्लाह ताला ने भाई वो नमाजें फर्ज की हैं, उससे बहुत ज्यादा अहम फर्ज क्या है? आला हजरत की कुतुब से जो दीन और मजहब जाहिर है उस पर अमल करना। रमजान के 30 दिन के जो मेरे भाई रोजे फर्ज हैं, उस फर्ज से भी अहम फर्ज है आला हजरत की भाई कुतुब से जो मेरे भाई जो जाहिर है दीन और उनका भाई वो मानना अकीदा, भाई हम पांचों को मान रहे हैं ना, 5 को मान रहे हैं ना। 5 चीजें हैं, कलमा है। हाँ, तो क्या आला हजरत क्या इतने बड़े हैं, उन्होंने मेरे भाई इतना बड़ा दावा कर दिया कि उनकी बातों को मानना हर फर्ज से अहम फर्ज है, और जो ना मानेगा वो मेरे भाई इस्लाम से बाहर हो गया। अच्छा, बस आपने बताया, हम चुप रहे, हमने सुना। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, अकायद सबसे जो है अहम चीज है कि रोजा और नमाज है? भाई रोजा नमाज। अच्छा, अकायद कुछ भी रखो,
अकायद तुम्हारा तो मेरे भाई चाहे गंदा हो, सुनो वो तो इस्लाम की बुनियाद है ना। अरे नहीं तो अकायद इस्लाम, अरे मेरे भाई इस्लाम की बुनियाद 5 है ना, उसमें तौहीद आ गया ना, नमाज आ गया ना, रोजा आ गया ना, हज आ गया ना भाई, वो आ गया ना ज़कात। तो ये 5 मेरे भाई जो बुनियादी चीजें हैं, वो आला हज़रत कह रहे हैं कि इनसे भी अहम फर्ज है मेरे दीन और मेरे भाई इनका मानना मजहब है जो उनकी किताबों में जाहिर हो रहा है। सुनो, जैसे किताबों में लिखा है कि जो बिदअती होंगे उनका रोजा, नमाज, हज, ज़कात कुछ कबूल नहीं होगा। हाँ, तो बरेलवियों का कहाँ कबूल हो रहा है? अरे भाई मेरे को आप भाई खाली शांति से बात करें, आप ज्यादा बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो अल्लाह के बंदे, आप जो पूछ रहे हैं मैं उतना ही तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो ये मत बोलिए कि बरेलवियों का कबूल होगा कि नहीं कबूल होगा। तो बरेलवी तो बिदअती हैं, अहले हदीस ने कौन सी बिदअत कर दी बताइए जरा। आप सुनिए तो सही, आपको भी नहीं मालूम है कि मेरी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। अगर आप सोचो कि मेरी नमाज कबूल होगी नहीं, तो अल्लाह के नबी ने बता दिया ना, और उस शख्स की नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। आप कहाँ पढ़ते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा? तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है, नबी ने बता दिया नमाज आपकी नहीं हो रही है। तो पहले आप सुनिए, तो पहले बताइए अकायद सबसे अफजल है कि रोजा और नमाज सबसे अफजल है? भाई जो फराइज हैं वो सबसे अफजल है, जो फर्ज को छोड़ देगा। भी हो। अच्छा ये बताइए कादियानी जो है, अरे तो फराइज में अकीदा भी आ गया ना, तो अकीदा तौहीद, अरे उसके बाद नमाज, उसके बाद रोजा, उसके बाद मेरे भाई ज़कात, उसके बाद हज। सुनो, अगर तुम्हारे पास दौलत है, अगर तुम्हारा ईमान सही नहीं है, ईमान तुम्हारा सही नहीं है और तुम ज़कात दे रहे हो तो तुम्हारी ज़कात होगी? भाई ईमान और अमल ये दोनों साथ में लेके चलना है। अगर खाली अमल करते हैं तो भी मेरे भाई आप सवाल करते हो तो बोलने क्यों नहीं देते हो अल्लाह के बंदे? या तो आप एक काम करो, एक साथ भाई 10-15 सवाल कर लो। कहाँ से कर लिए? क्योंकि एक जवाब हम देते नहीं, दूसरा सवाल आप उसमें पहले डाल देते हो। पहले सुना तो करो सामने वाले की मेरे प्यारे भाई। हाँ तो मेरे को पहले बताओ कि अकीदा सबसे अफजल है, अकीदा बुनियाद है कि रोजा रखना जो है और हज करना, नमाज पढ़ना? मैंने अभी आपको बताया ना, इस्लाम की जो मेरे भाई बुनियाद है उसमें सबसे पहली चीज है तौहीद। तो तौहीद एक अकीदा ही है कि एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह से मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, ये अकीदा ही तो है ना, ये भी तो फर्ज है। तौहीद फर्ज है कि नहीं है? हम वही पूछ रहे हैं कि तौहीद आपके नजदीक फर्ज है या नहीं है, ये बताइए। हम वही तो पूछ रहे, जब अकीदे की बुनियाद पर तो हम पूछ रहे कि नहीं आपका अकीदा क्या है? तौहीद को आप मेरे वो लाजिम मानते हैं या ऐसे टाइम पास मानते हैं? तौहीद आपके नजदीक क्या है? अगर टाइम पास मानते तो हम आपसे बात नहीं करते यार। हम तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आला हजरत आप कितनी मतलब गंदी बात बोल रहे हैं। आला हजरत को छोड़ो, यही तो हम भी कह रहे हैं, आला हजरत को छोड़ो, तो आप लोग छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो हमारे से पूछ रहे हैं कि नमाज कब फर्ज है? नमाज कब फर्ज है? हाँ, किसके ऊपर फर्ज है नमाज? भाई हर उस इंसान के ऊपर फर्ज है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानता है, ईमान वाला है। हाँ, तो पहले ईमान वाला बनना जरूरी है कि पहले नमाज पढ़ना जरूरी है? तो मैं ये सवाल ही नहीं कर रहा हूँ ना, ये तो आपका दूसरा सवाल आ गया, आउट ऑफ टॉपिक आ गया। बात कर ली थी आला हजरत के ऊपर कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर अमल करना, जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो नमाज पढ़ना फर्ज है, तो क्या उससे भी बड़ा फर्ज है आपके आला हजरत की बात को मानना? हाँ, उन्होंने, अब हम तुम्हारी बात मानेंगे तो क्या हम तुम्हारे हो गए? यानी तुम्हारे जो है हम तेरी कर रहे हैं, तुमको हम नबी मान लेंगे? तुम्हारी बात में तुम साबित करोगे? एक मिनट मेरे प्यारे भाई, आप अगर हैं अजमत अली भाई, ठीक? हाँ बोलिए। अजमत अली अगर कहें कि मेरे दीन और मेरे मजहब पे जो मेरे भाई कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है, तो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि अजमत अली भाई ये आपने क्या कह दिया? आपको ये कहना चाहिए था कि मेरा दीन और मेरा मजहब जो अल्लाह और अल्लाह के भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम से जो मेरे भाई साबित है उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो हम कहते हैं हाँ भाई अजमत अली भाई ने सही कहा। लेकिन अजमत अली साहब ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हटा के अपनी तालीम थोप दी लोगों पे, तो ये मेरे भाई नबूवत पे डाका है कि नहीं? इसी तरीके से आपके आला हजरत ने भी किया कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है।
तो ये क्या हो गया भाई, ये डाका हो गया ना। कैसे डाका हो गया? मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मेरा, अरे अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजों छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इसको मजबूती से थाम लेना। अल्लाह के नबी दो चीजें छोड़ के गए और अहमद रजा खान ने क्या कहा, उन दो चीजों को मेरे भाई साइड में कर दिया और कहा कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। बात अल्लाह साफ साफ नबूवत से डाका। सुनो, हमारा जो है, हमारी कुतुब में से जो साबित है, कुरान और हदीस से जो साबित है उस पर अमल करना है, न कि हमने कोई नया दीन चला रहे हैं। तो कुरान हदीस से कहाँ साबित है? बेवकूफ बना अल्लाह के नबी नूरी मखलूक है, कौन सी आयत से साबित है? ओपन एरिया। अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, कौन सी आयत से साबित है? अल्लाह के नबी इस दुनिया में हर जगह मेरे भाई आते जाते हैं, हाजिर नाजिर है, ये कौन सी आयत से साबित है? आपका जितनी कुतुब है उसका मेरे भाई कुरान हदीस से लेने ही देना नहीं है, ये तो सफेद झूठ है। अरे यार फिर हाँ बताइए ना। वही तो हमने इसीलिए कहा कि हमें मुफ्ती चाहिए यार, मुफ्ती से बात करें। तो इसीलिए तो मैं मुफ्ती का आपको नंबर दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुफ्तियों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आप जैसे मेरे पे गुरा साहब को फतवा देंगे। देखो मुफ्ती साहब, आपको आता ना जाता चुनाव चिन्ह आता, आपको खुद अपने मसलक का इल्म नहीं है। अरे चुनाव सुनो, ये आला हजरत के अंधे मुकल्लिद हैं भाई। तुम यही नहीं बता रहे हो कि अकीदा जो सबसे अफजल है, कि नमाज सबसे अफजल है, ये नहीं तुम बता रहे हो। तो जब तक अकीदा भी फर्ज है तौहीद का, और जो नमाज है वो भी फर्ज है, वो दोनों पर आए थे ना। फर्ज है नहीं, किसी का भी फर्ज नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुसलमान होना फर्ज है। मुसलमान होगा। अरे तो मुसलमान होगा कब होगा? जब वो अल्लाह को एक मानेगा ना। आप बरेलवी लोग अल्लाह को एक मानते हो? तुमने कह दिया कि आप बरेलवी लोग अल्लाह को एक मानते हो? अल्लाह को एक क्यों नहीं मानते? तो फिर खाली एक अल्लाह से कहीं नहीं मांगते हो? तो हम कितने मतलब जबान से कहते हो अल्लाह एक है, और जब अल्लाह से मांगने की बारी आती है तो कहते हो हम तो या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम, या गरीब नवाज, या ताजुल शरिया, तो ये सब मेरे भाई का एक ले करते हो। जब अल्लाह एक है तो एक अल्लाह से मांगो ना, या अल्लाह। आज तक किसी बरेलवी ने कभी नहीं कहा कि या अल्लाह, वो हमेशा कहता है या गौसे आजम, या गरीब नवाज, या ताजुल शरिया, या मौला अली। ये सब क्या है? ये तौहीद है आपका? अगर ये तौहीद है तो शिर्क क्या है? नहीं सुनो, आप क्या कहते हो? अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात को मानो। क्या कहते हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो। ये हम नहीं कहते, ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे मत बढ़ो ना, और उसकी बातों को अमल करो। जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी, कुरान में है ना। अरे तो अल्लाह सुब्हानो तआला खुद कुरान में कह रहा है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह और अल्लाह के नबी से आगे ना बढ़ो। तो ये तो तमाम आयतें मौजूद हैं, लेकिन ये अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह की भी इताअत करो, अल्लाह के नबी की भी इताअत करो, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी मांगो मदद। भाई मेरे तो हम वहाँ पर नहीं जा रहे यार, तुम इसलिए हम भाई ऐसे आप लोग फातिया देते रहते हो, लेकिन फातिया जब देते हो तो ये भूल जाते हो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये वाली आयत मेरे भाई निकाल दो फिर आप लोग। काय के लिए निकाल दें भाई? जब अमल नहीं करते हो इसके ऊपर, आपका अकीदा ही मेरे भाई दुरुस्त नहीं है, और बात करते हो नमाज की। सुनो, इससे पहले क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें गौसे आजम के लिए नहीं है, गरीब नवाज के लिए नहीं है, ताजुल शरिया के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है ना। हाँ। अब तुम किसी की तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? तो वो तो असबाब के तहत करते हैं ना। तुम करते हो कि नहीं करते हो? तो असबाब के तहत करते हैं ना। अरे हम कह रहे हैं कि भाई हमको आयत सुना रहे, अगर हमारा बेटा एग्जाम में पास हो गया, वो हमारे सामने है, जिंदा है, तो हम कहेंगे ना हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा तुमने मेहनत की, तुम एग्जाम में पास हो गए, तो ये तो असबाब के तहत तारीफ है ना। क्यों असबाब के बाहर अगर आप तारीफ करोगे तो फिर कैसे होगा? अल्लाह को छोड़ करके शिर्क नहीं हुआ। अच्छा भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमें बताओ ना कि कहाँ लिखा हुआ है कि असबाब के तहत किसी की तारीफ करना शिर्क है? कहाँ लिखा हुआ है? आप ही बताओ ना। सुनो, आप ही तो हम रसूल को खुदा मानते
जो उनसे उनकी तालीम करते हैं, हम खुदा को मान करके उनसे मांगते हैं। तुम हमें बताओ कि कहाँ हम तो मेरे भाई खुदा तो मान लिया ना आपने, अल्लाह का बेटा मान लिया ना। किसने कह दिया? अरे आप ही लोग तो कहते हो कि माज अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने नूर से अपने नबी को पैदा किया, तो अल्लाह ने जब पैदा किया तो माज अल्लाह के अल्लाह बाप बन गया और अल्लाह के नबी बेटे बन गए। यानी कि जो ये ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे, वही अकीदा तुम्हारे जैसे जाहिलों का भी हो गया है माज अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, यही तो यार हम पूछना, यही तो हम कहते हैं ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी एक इंसान थे, बशर थे, वो इंसानों में सबसे अफजल इंसान थे, वो नूरी मखलूक नहीं थे। अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसको अपने नूर से नहीं माज़अल्लाह पैदा किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला खुद फरमाता है सूरह इखलास में कि ना तो अल्लाह को किसी ने पैदा किया है और ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। और आप लोग क्या कहते हो? अल्लाह ने अपने नूर से अल्लाह के नबी को पैदा किया माज़अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप लोग की खिलाफ मेरे भाई पूरी कुरान है। अरे भाई अब बताएं, हमने सुना ना, हम सुना, जितना हम मानते हैं उतना हमने कहा कि हाँ ठीक है कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जो नबी को अव्वल और आखिर नबी माना जाता है कि नहीं माना जाता? अव्वल और आखिर नहीं, आखिरी नबी। अव्वल तो मेरे भाई आदम अलैहिस्सलाम थे ना। अच्छा मतलब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी नहीं है? अव्वल नहीं है, आखिरी मेरे भाई खातमुन नबी हैं। अब अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर कोई कहता है कि मैं नबी हूँ तो उसको जाना पड़ेगा पागल खाने। अच्छा हम तो दोनों बात कर रहे हैं ना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल और आखिर दोनों नबी अव्वल थे तो आदम अलैहिस्सलाम फिर मतलब कहाँ से आ गए फिर? भाई देखो आप थोड़ा हमें बोलने दो यार। नहीं आपने कहा ना अव्वल और आखिर, यानी कि सबसे पहले और सबसे आखिरी। आखिरी है ना? ठीक तो हाँ ठीक भाई, अगर हम ये कहें, अगर यही तो हम पूछना चाहते हैं ना कि अरे अल्लाह के बंदे कुरान और भाई अल्लाह के कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से तो साबित होता है कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले थे और जो सबसे आखिरी हैं वो हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाई हम यही तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने अव्वल, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आला हजरत के दीन और मजहब पर जो उनकी किताबों से साबित है, अगर उस पर अमल करेंगे तो आप मेरे भाई दीन इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। अरे मेरे भाई हम जो आपसे कह रहे हैं आला हजरत को छोड़िए, हम तो वही हम भी आपसे कह रहे हैं आला हजरत को छोड़िए, आपके बाद दोबारा उनकी कोई तालीम पे अमल ना कीजिएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम पे अमल कीजिए। अरे तो तुमसे हम फतवा पूछ रहे हैं तो तुम फतवा बताने के लिए राजी नहीं हो, देने के लिए राजी नहीं हो। फतवा मुफ्ती देगा ना, हम कोई आलिम मुफ्ती थोड़ी ना है, हम तो तालिबे इल्म है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है, जिसने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी हैं और आखिर नबी हैं, हाँ वो झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, गुमराह है ना? इस बात को मानते हो ना? तो अव्वल मेरे वो कैसे हो सकते हैं? जो पहले जो थे वो आदम अलैहिस्सलाम आए थे ना दुनिया में। अच्छा उसे आप काफिर कहेंगे? जो ऐसा कहे कि वो अव्वल हैं, जो कहे कि अव्वल हैं, उसे आप काफिर कहेंगे? काफिर क्यों कहेंगे? हम तो कहेंगे जाहिल है, गुमराह है, मक्कार है। जाहिल गुमराह क्यों भाई? हो सकता है उसके पास भाई इल्म ना हो, उसने अपनी अकल से कह दिया हो। अब किसी ने अगर भाई वो लाइल्म की बुनियाद पे, जिहालत की बुनियाद पे अगर ये कह दिया हो कि अल्लाह के नबी पहले नबी थे। बात कर रहे हैं यार, हम पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं कि जो ये कहे। अच्छा क्यों ये अल्लाह के नबी की पैदाइश क्या है? हमें भाई देखो, अब तुम हमसे पूछो नहीं, हम तो खाली इसलिए मुफ्ती पूछता नहीं है, तुमने कहा इस्लाह करने के लिए। अल्लाह के नबी की जो पैदाइश है वो तो मेरे भाई, जो आप खाली ये कहें कि के वाक़ये के वक्त की है ना पैदाइश, तो वो पहले नबी कैसे हो सकते हैं? अरे यानी कि जो भाई ये आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मार रहे हैं मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जो तमाम उनसे पहले आ चुके थे अल्लाह के नबी। अरे मेरे भाई हम सारी बात आपकी मान रहे हैं, हम कब तो मान रहे तो तौबा कीजिए ना अपने बातिल अकीदे से ना। तो पहले हमें बताइए तो, जो कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी हैं, आखिर को तो सभी मानते हैं। भाई वो ला इल्म है, वो जाहिल है, वो झूठा है, फरेबी है, मक्कार है। अच्छा जो पढ़ा लिखा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उससे आप क्या फतवा देंगे? उसे आप काफिर कहेंगे? भाई फतवा हम नहीं दे सकते मेरे भाई, इतनी हमारी औकात ही नहीं है कि हम फतवा दे दें। उसे आप काफिर कहेंगे? नहीं हम फतवा नहीं दे सकते, हम मुफ्ती नहीं है। जब हम मुफ्ती बन जाएंगे, डिग्री हमारे पास आ जाएगी तो फतवा हमसे मांगिएगा। अच्छा जो ये कहे, सुनो, जो ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी हैं
उसकी रोजा नमाज हज ज़कात कबूल होगा कि नहीं होगा? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना, हम कैसे फतवा लगा सकते हैं भाई? हम लोगों की तो बात करते हो कि जो है, हम लोगों की बात करते हो कि जो बरेलवियों की बात करते हो कि कुछ भी तुम्हारा कबूल नहीं है, तुम तौबा कीजिए। तो वो तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि और उस शख्स की नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो जो अल्लाह के नबी ने वाज़ेह बता दिया है वो हम आपको बता रहे हैं, हम कोई फतवा थोड़ी ना थोप रहे हैं। अच्छा ठोकिए मत। अच्छा चलिए, वो सूरह फातिहा भी करता है, रफ़े बैन भी करता है, सीने के पास हाथ भी बांधता है। वो कौन करता है, आप उसका नाम बताइए पहले। आप पहले हम आपसे जो पूछे सब नहीं, ऐसा दुनिया में कौन सा अहले सुन्नत आलिम दीन है जिसने कहा हो कि अल्लाह के नबी अव्वल और आखिर दोनों नबी थे? एक का नाम बताइए। अरे पहले हमारी बात सुनिए आप। तो आप कयास करके कि अगर कोई ऐसा कहे, अगर कोई वैसा कहे, तो ये अगर मगर वाले मसले मसला नहीं है। जिसने कहा आप उसका नाम बताइए, उसकी तहकीक की जाएगी, फिर उसके ऊपर मेरे भैया फतवा लगाया जाएगा। अरे यार भाई, हम ऐसे हवा में फतवेबाजी थोड़ी ना होती है। हवा की नहीं। तो देखो, हम आपसे खाली आप इस्लाह कीजिए, फतवाबाजी मत दीजिए। आप जैसे जो है बरेलवियों की नमाज नहीं कबूल होती है, चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन जो सूरह फातिहा पढ़ता हो, रफ़े बैन करता हो, यानी आप उसकी नमाज कबूल होती है ना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 631, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो जो अल्लाह के नबी के तरीके से नमाज पढ़ता है, अकीदा उसका तौहीद पे होता है, बिदअतों से पाक होता है, उसकी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है। जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो तो तुम बता नहीं लो। हम कह रहे हैं कि वो सब कुछ करता है, लेकिन वो अव्वल नबी मानता है कि अव्वल भी है आखिर भी है। हाँ, तो उसका रोजा नमाज हज अकीदा उसका दुरुस्त नहीं है, उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, उसको तहकीक करना चाहिए। सुनो, तो उसका जो है रोजा नमाज हज ज़कात कबूल होगा कि नहीं होगा? वो अल्लाह बेहतर जानता है, आप नहीं जानते। यानी खाली हम कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह ताला किसकी इबादत कबूल कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा है? इसका कोई वाज़ेह सबूत थोड़ी ना है। तो यार इसीलिए तो हम आपसे मुफ्ती साहब आप गैर की बातें कैसे पूछ सकते हैं? अब आप मेरे पे कल को कह दें कि जो हमारे ताजु शरिया का इंतकाल हुआ है वो कब्र में कैसे हैं, तो हम नहीं बता सकते कब्र में कैसे है ना, गैर का हमको नहीं पता है। अरे उनको छोड़ो ना भाई, हम कब कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हैं सबको छोड़ो, आला हज़रत को छोड़ो, ताजु शरिया को छोड़ो, सबको छोड़ो, अल्लाह उसके बारे में तुम्हारा क्या हुक्म है? मेरा कोई हुक्म नहीं है, मैं कौन होता हूँ मेरे भैया किसी को हुक्म देने वाला? यार तो हम लोगों को तो बहुत सारा हुक्म देते हो कि ऐसा मैं खाली इतना कहूँगा मेरे प्यारे भाई, मैं आखिरी बार आपको जवाब दे रहा हूँ इस सवाल का। अब मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। जो इंसान भाई ये कहता है कि अल्लाह के रसूल अव्वल और आखिर दोनों नबी थे, उसका जो अकीदा है भाई वो थोड़ा कमजोर है, और अगर वो जानबूझ के ऐसा बोल रहा है तो वो झूठा है, मक्कार है, गुमराह है। क्योंकि ये एक आईने की तरह सच्चाई है कि दुनिया में जो सबसे पहले जो आए वो आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह के नबी की भाई पैदाइश ही नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी की पैदाइश तो बाद में हुई है, असहाबे फील के वाक़ये के वक्त 12 रबी अव्वल को, और आपके आला हज़रत के हिसाब से अल्लाह के नबी की तारीख पैदाइश 8 रबी अव्वल है। अरे हमको वहाँ जाना नहीं है यार, तुम समझ नहीं रहे हो, हमको वहाँ जाना नहीं है। आला हज़रत को आप मेरे भाई साइड से हटाइए ना, फिर आप कह दीजिए कि आप इतना बोल दीजिए कि आला हज़रत हमारे जूतों की नोक पे, भाई हम नहीं मानते आला हज़रत को। सुनो, हम तो खाली यहाँ अव्वल और आखिर नबी के बारे में पूछना चाहते हैं कि जो ऐसा। अच्छा चलिए, आप हमको दलील दे दीजिए कि अल्लाह के नबी सबसे पहले नबी थे, अव्वल भी थे, आखिर भी थे। आप हमको भाई इसका मेरे पे हवाला दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कौन सी हदीस में कहा कि ऐ सहाबा मैं तो अव्वल भी हूँ, आखिर भी हूँ, मैं ही सबसे पहले नबी था और सबसे आखिरी नबी भी भाई वो मैं ही हूँ? कोई ऐसी कोई हदीस हो तो हमको बता दीजिए ताकि हम भी अपना भाई अकीदे की इस्लाह कर लें। भाई हम तो अकीदे की आपके पास मेरे पे दलील के नाम से कुछ है नहीं, 0 सन्नाटा है। सुनो, हम तो खाली पूछना चाहते हैं कि ऐसा लिखने वाला और कहने वाले के बारे में क्या हुक्म है? अगर ऐसा कोई लिखता है, अगर वो कोई दलील देता है और वो दलील सही होती है तो उस पे मेरे भाई हम लोग उस बात को मानेंगे। अगर कोई अपनी अकल से अपने घर का दीन बता देता है तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। बिना दलील के बात हम थोड़ी ना मानते हैं। हाँ, तो तुमने उसे गुमराह कर दिया कि जो ऐसा कहता है वो गुमराह है, बददीन है। बिल्कुल बददीन है ना? अच्छा आप सुनो,
जो इंसान आदम अलैहिस्सलाम को पहले नबी ना माने, उनसे भी पहले किसी नबी को बना दे तो वो तो मेरे भाई अब हम उसका नाम बता रहे हैं ना, अब उनका हम नाम बता रहे हैं ना। देखो उनका नाम है मोहम्मद हकीम सादिक साहब सियालकोटी। ये कौन है? ये अहले हदीस जमात के हैं। तो और इन्होंने एक किताब लिखी थी। अहले हदीस हैं तो क्या मासूम है? क्या उनसे मेरे भाई गलती नहीं हो सकती? फरिश्ते हैं, दूध के दूल्हे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। उन्होंने बात बताते हैं वो अहले हदीस। मेरी बात तो सुनो। अहले हदीस है तो उनकी सारी बात मेरी सुनोगे? अरे अब मेरी बात तो सुनो। उन्होंने ये किताब 1955 में लिखी है, 1955 में। भाई अगर वो 1400 साल पहले भी अगर वो इस किताब को लिखते ना कि अल्लाह के नबी पहले नबी हैं, और अल्लाह की किताब अगर कहती कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम आए थे पहले, तो हम अल्लाह की किताब को मानते। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आज इतने सालों से ये भाई आपने कुरान पढ़ा नहीं क्या? सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक एक बार 114 सूरतें पढ़िए, उसमें मेरे भाई पूरा वाक्य है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आदम को अपने हाथों से बनाया, सबसे कहा कि सजदा करो, शैतान ने इनकार कर दिया, उसको तकब्बुर था कि नहीं आदम को मिट्टी से बना है, मैं तो आग से बना हुआ हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो वो पहले नबी थे ना। अरे भाई मेरे 100% हम आपकी बात माने, हमें तो इतना पूछना था, हमने पूछ लिया। तो जब 100% आप मान रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले थे और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात खत्म हो गई ना। हाँ अप्पू भाई, अब सुनो, अब हमारा दूसरा सवाल है जो मुफ्ती से पूछना चाहते हो, तुमसे भी पूछ रहा हूँ। पूछिए। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि जो हम छोटी मखलूक और बड़ी मखलूक मानते हैं, यानी बड़ी मखलूक से मतलब जो है औलिया अंबिया इनको मानते हैं, छोटी से मुराद हम जो है ये लेते हैं कि आम इंसान है। तो इस पर भी जो है किताब लिखने वाले ने लिखा है कि इंसान से भी छोटी चीजें मखलूकात अल्लाह ने पैदा की है, हम मान रहे हैं कि इससे भी छोटी, और इंसान से हजारों बड़ी मखलूकात भी जो पैदा की है। अब ये बड़ी मखलूकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी कोई जात है? ऐसा लिखने वाले के ऊपर क्या तुम्हारा हुक्म है? अब ये जो आलिम ने मेरे भाई किताब में भाई जो बात को भाई वो लिखा है, वो कौन से भाई कॉन्टेक्स्ट में उनका मेरे भाई सुनो क्या मानना था, क्या वो समझाना चाह रहे थे? अब जब तक मैं पूरी किताब को पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं एक बीच की भाई इबारत को पढ़ के कैसे फैसला कर लूंगा? सुनो, मैं थोड़ी सी इबारत पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया उनके कहने का मतलब क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ। अरे मेरी बात सुनो। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो भी मेरे भाई मतलब जिन को मेरे भाई बनाया, सुने आप समझाएं, बाद में हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, पहले आप मेरी बात सुने। देखो लिखा है अपनी तरफ से, छोटी मखलूक से मुराद आम लोग और बड़ी मखलूक से मुराद अंबिया औलिया। इत्तबा कर खुद उनकी शान में गुस्ताखी करके मुत्तकिब हो रहे हैं और बुजुर्गों दीन की बेअदबी कर रहे हैं। फिर ये भी समझना चाहिए कि इंसान ना तो अल्लाह की छोटी मखलूक है, क्योंकि उससे छोटी हजारों मखलूकात मौजूद हैं, और ना सबसे बड़ी मखलूक है कि उससे बड़ी हजारों मखलूक मौजूद हैं। अब आप ये बताइए हमें, जो इंसानों से छोटी मखलूक, चलो हमारी समझ में आ रहा है कि छोटी मखलूक है, लेकिन से भी ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं ये किसी मेरे भाई बरेलवी ने किसी मतलब भाई आलिम का रद्द करने की किताब को लिखा होगा, आप उसी को देख देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज ये, अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो भी मखलूक बनाई है उसमें सबसे जो अफजल भाई जो है वो इंसान है, और इंसानों में जो सबसे अफजल तरीन भाई वो जात है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की जात है, और अंबिया अलैहिस्सलाम में जो सबसे अफजल हैं वो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक, हमारे लिए इंसानों में तमाम इंसानियत एक तरफ और हमारे अल्लाह के नबी एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाली ये चाहते हैं कि जो इस तरीके से लिख रहा है उन्होंने सही लिखा है, लेकिन जो आपके बरेलवी आलिम ने उनकी मेरे भाई बात को छाट काट के मेरे भाई लोगों को समझाने की कोशिश की है, वो उनके अकल की कमी ना। आप नहीं पढ़ते? सुनो, हमने आपसे पहले किताब मांगी थी ना,
तो आपने बताया नहीं हमें कि कौन सी किताब पढ़ो। हमने कहा कि इख्तिलाफ की किताब चाहिए। ये जो भी हमें पढ़ रहा हूँ वैसे तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे समझ में कम आती है, लेकिन जो पढ़ करके सुना रहा हूँ ना ये जमाते अहले हदीस की किताबें हैं। तो वही तो मैंने कहा था कि अगर आपको किताब पढ़ना है तो सबसे पहले अल्लाह की किताब पढ़िए। सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक 114 सूरतें समझ के पढ़िए। तो वो आप पढ़ नहीं रहे, आप खाली इख्तिलाफ वाली किताब पढ़ लें तो आपका होगा क्या? अरे यार भाई, तुम इख्तिलाफ ही पर तो तुम बहस करते हो, मलफूजात पर बहस करते हो, आला हजरत की किताबों पर बहस करते हो। तो जो भाई जो भी आप मानते हैं, जिसको आप लोग मेरे भाई कुरान हदीस से अफजल मानते हैं, तो उसके ऊपर हम बात ना करें। जो ये किताबें हैं, सुनो, जो ये किताबें हैं, हम भी तो इन्हीं किताबों को पढ़ करके तो देखें कि वो कैसे हैं। हमने तो बताइए ना भाई, हमने तो आपके तमाम गांव वालों को, बिरादरी वालों को ओपन चैलेंज हमने भाई वो दिया था, अहले सुन्नत अहले हदीस का एक अमल एक अकीदा ऐसा बता दो जो कुरान हदीस के खिलाफ हो। हाँ, यही आप एक बताओ ना, यही एक हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे अल्लाह की मदद से उसका। हमने आपको 2 अमल बताया, एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल और आखिर दोनों मान रही है, हालांकि अव्वल तुम मानने के लिए कौन आलिम है? देखिए, किसी एक आलिम का अकीदा वो आप तमाम जमात पे आप नहीं थोप सकते हैं। अब वो क्या समझाना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, मैंने वो किताब पढ़ी थोड़ी ना है। तो तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हें जरूरत नहीं है पढ़ने की ना। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? आप हमें अमल अकीदा बताइए ना कि भाई तमाम जमात का अकीदा ये है कि ये लोग अल्लाह के नबी को ऐसा मानते हैं वैसा मानते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे ना। अब नबी को ऐसा मान रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या हुक्म है? तो हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी इंसानों में सबसे अफजल इंसान थे। जो ऐसा अकीदा रखे कि इंसान से भी बड़ी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की है, तो वो उसके बारे में तुम्हारा क्या हुक्म है? तो मेरे पे गलत है ना। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सबसे जो अफजल मखलूकात थी वो इंसानों को बनाया है, लेकिन आला हजरत ने अपने आप को जानवर बना दिया। आला हजरत अपने आप को कुत्ता कहने लगे। वहाँ मत जाओ यार, क्यों ना जाए आप? मतलब मीठा मीठा जब कड़वा कड़वा थू। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, तुम कुत्ते नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो क्या ये बरेलवी लोग अपने आप को कुत्ता बना लेंगे? अच्छा चलिए, हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता अगर शिकार करता है तो, और शिकार उसने किया, पकड़ लिया, तो उसका पकड़ा हुआ और खून बह रहा है, तो क्या उस खाना जायज है कुत्ते का? हाँ, बिल्कुल जायज है। और अगर मर गया तो? कौन मर गया तो? जानवर, जिस चीज को उसने पकड़ा, कुत्ते ने किसी जानवर को, हलाल जानवर को पकड़ा और वो छोड़ा। अरे तो वो शिकारी कुत्ते होते हैं ना। शिकारी कुत्तों के बारे में तो आता है कि शिकारी कुत्ते वो जाके शिकार को भाई वो पकड़ के दबोच के लाते हैं, फिर उसको अल्लाह अकबर कह के, ठीक है, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कह के उसको मेरे भाई ज़िबा किया जाता है। नहीं, तब वो हलाल होता है ना। वो मर गया। हाँ, तो मरा हुआ मुर्दार नहीं खाया जाएगा ना। हाँ, और जो ऐसा कहे अहले हदीस कि जो है अगर कुत्ते को शिकार करने के लिए छोड़ा गया और जानवर को पकड़ा, जानवर मर गया, तो भी वो हलाल है, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या हुक्म है? तो उसको दलील देना पड़ेगा ना। हाँ? अरे उसको दलील देना पड़ेगा। और जो उसको दलील देना पड़ेगा, तुम्हारी क्या राय है कि उसके बारे में क्या होना चाहिए? अरे राय के अहले हदीस अगर कह रहा है तो हो सकता है भाई उनके पास कोई हदीस हो जिसमें उन्होंने ऐसा मसला पढ़ा हो। अगर उन्होंने हदीस दी है तो उस पर अमल होगा। अगर वो मेरे भाई बिना दलील के तो अमल नहीं। देखिए, हम आपको समझा दे रहे हैं अहले हदीस जमात का अकीदा क्या है। हम बिना दलील के अपने आलिमों की भी बात को नहीं मानते हैं। अगर हमारा आलिम दीन भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम से हमको बताएगा तो मानेंगे, अपनी अकल से बताएगा तो नहीं मानेंगे। आपके समझी में नहीं आ रहा है? अरे हम कोई अंधे मुकल्लिद थोड़ी ना है आप लोग की तरह कि जो हमारे मस्जिद के इमाम ने कह दिया वो हमारे लिए हुज्जत हो जाएगा। अरे अपू भाई, तुम अंधे मुकल्लिद हो, ऐसे मुकल्लिद हो ना भैया। हम अगर अंधे मुकल्लिद होते हैं ना, तो अगर हमारे आलिमों की कोई भी गलती होती हम कहते हैं हाँ वो गलती नहीं है, लेकिन हम तो गलती को गलती मानते हैं। खाली आपने कहा मुझे बताओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम की हर औलाद खताकार है। भाई हमसे भी गलतियाँ होती हैं, आलिमों से भी गलती होती है, तमाम इंसानों से गलती होती है, कोई मासूम थोड़ी ना है। सुनो, इतनी लंबी बहस की कोई फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन जो हमने पूछा उसमें तो एक को तो तुमने गुमराह कर दिया, दूसरे को भी बताया कि ये गलत लिखा है, और तीसरा भी सवाल करूं तो मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ, जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी अव्वल और आखिर दोनों नबी थे, उसका ये अकीदा बातिल है।
چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، چاہے بریلوی کا ہو، چاہے دیوبندی کا ہو، چاہے جس کا دنیا میں ہو، اگر کوئی اللہ کے نبی کو پہلا اور سب سے آخری یہ دونوں نبی ایک ساتھ مانتا ہے تو اس کا عقیدہ باطل ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے اور اللہ کے نبی لاسٹ میں آئے۔ اب اگر اس حقیقت کو کوئی چھوڑ کے کوئی اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے تو ہم اس سے کہیں گے ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو، اگر وہ ثبوت پیش کر دے گا تو اس کی بات کو مانیں گے، ورنہ اس کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ہے انسان سے جو سب سے بڑی مخلوقات بتائی ہے کہ ہزاروں مخلوقات پیدا ہیں، بڑی مخلوق جس میں انبیاء اولیاء سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا لکھنے والا کیا؟ ارے انہوں نے اصل میں بھائی اس کو بانٹ دیا ہوگا، مطلب اس میں کیٹیگری میں کہ کون بڑا ہے اور بڑے میں کون بڑا ہے، چھوٹا کون ہے، چھوٹے میں کون چھوٹا ہے، لیکن عام طور پہ ان کو اس میں کچھ نہیں باندھا ہے، نہیں، انہوں نے اپنی سوچ سمجھ سے، انہوں نے اپنی تحقیق بھائی اپنی تحقیق سے اس بات کو بھائی وہ نوٹ کر دیا ہوگا، لیکن ایکچوئل بات بھائی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی، چاہے وہ میرے بھائی فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، پانی کے جانور ہوں، ان سب میں جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہترین جو انسان ہے وہ ہیں انبیاء علیہ السلام۔ ہم وہی ہم بھی سوچتے ہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہزاروں مخلوق اس سے بڑی پیدا کی ہے، تو وہ ایسا عالم کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی جس نے لکھا ہے آپ جا کے اس سے پوچھو نا، ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی نا، ہم کوئی اس کے مقلد تھوڑی نہ ہے۔ ارے یار بھائی دیکھیے آپ بات سمجھے نہیں میری، جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ سنو تو میرے بھائی، آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم حنفی ہیں، تو اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کے اوپر پیش کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ اب آپ کہتے ہو کہ ہم بریلوی ہیں، تو ہم آپ کے اوپر آپ کے امام احمد رضا خان کی بات پیش کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں، ہم تو بھائی قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ ہم سے بتائیے نا۔ اب کون سا عالم کیا کہہ رہا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی نہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو لکھنے والا ہے یہ سلفی ہے۔ ارے کون سا سلفی ہے؟ آج کل لوگ میرے بھیا سلفی بن کے راتوں رات تو سلفی ہو جاتے ہیں، ایک رات پہلے وہ عمران ہوتے ہیں، اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو ان کا نام ہو جاتا ہے عمران سلفی۔ اس کے بارے میں تمہارا جواب کیا ہے کہ ایسا آدمی گمراہ ہے یا بددین ہے کہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ انسان سے بڑی مخلوق اللہ پاک نے جو ہے دوسروں کو ہزاروں پیدا کی ہے؟ ایسے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ بھائی انسان سے بڑی مخلوق تو کوئی نہیں ہے، سب سے جو افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ کم عقل ہے۔ بددین نہیں کہو گے تو اس میں بددین کہاں سے ہو گیا؟ اس سے عقل نہیں ہے نا بیچارے کے۔ سنو، اس میں رسول کی گستاخی نہیں ہے تو کہ رسول سے افضل جو ہے بتا رہا کہ ہزاروں مخلوقات پیدا کی اللہ نے، اس میں اللہ کی بھی جو توہین ہے کہ نہیں ہے کہ جو ہے نبی سے بڑھ کر کے دوسروں کو بنا دیا؟ اگر کسی عالم نے ایسا لکھا ہو کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات سے بھی افضل کوئی میرے بھائی اس دنیا میں کوئی ہے مخلوق ہے تو اس کا عقیدہ باطل ہے۔ باطل ہے نا، عالم نے لکھا ہو تو؟ وہ عالم لکھے یا علامہ لکھے، جو اللہ کے نبی کی انبیاء علیہ السلام کی جو میرے بھائی ذات ہے ان سے بڑھ کے اگر میرے بھائی کسی کو افضل مان رہا ہے انسانوں میں تو وہ میرے بھائی پھر اس کے عقل میں کمی ہے۔ سنو، اچھا دیکھو، جاہل کی بات الگ ہے، یہ عالم کا نام ہے نور الاسلام سلفی۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ نور الاسلام سلفی۔ ارے بھائی کتنے سلفی مارکیٹ میں ٹہل رہے ہیں، کن کن کا حوالہ دیتے رہیں گے؟ اچھا سنیے، اچھا دوسرا سوال تو ہوگا، تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہے پر نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ پر نور صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ نہیں، اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ پہلے معنی بتا دیجیے۔ اب پر نور کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہم تو سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا تھا پر نور یعنی پورا نور۔ اچھا پورا نور؟ ہاں بھائی، پر نور کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں تو یہی تو عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور ہے، پورا نور ہے۔ ہاں یہی ہمارا عقیدہ ہے نا، اللہ کے نبی بھائی وہ نور ہے، نور ہے نا۔ تو اگر ہم یہ کہیں نور اللہ تو اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی اللہ کے نور۔
हाँ अल्लाह ही के नूर है, ये भी हम मानते हैं। तो फिर जो आप कहते हो कि जो है वो अल्लाह के बेटे हो गए या ऐसे हो गए, तो अल्लाह के आप फिर नूर है, तो गलत ये कर नूर रहे हो बने ना। कैसे? अल्लाह के नबी नूर हैं, लेकिन कौन से नूर हैं? तो कैसे? हाँ तो वही हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि नूर का मानना होता है रोशनी। तो अच्छा। इस मानने में भाई हम अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो सच्चाई के, अच्छाई के, ठीक है, ईमानदारी के, भाई वो नूर हैं, हिदायत के नूर हैं, और वो अल्लाह की तरफ से आए हैं, तो अल्लाह के नूर हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नूर से अल्लाह के नबी को पैदा किया, नूरी मखलूक है अल्लाह के नबी, तो ये अकीदा हम नहीं मानते। हम अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं, नूरी मखलूक नहीं मानते। अच्छा, नूरी मखलूक नहीं मानते भाई अच्छा। अल्लाह के नबी के माँ बाप कौन थे? भाई चलो बाप भाई, का नाम अब्दुल्ला था, माँ का नाम आमना था, दोनों इंसान थे। इंसान का बच्चा पैदा होगा ना, इंसान से जानवर तो पैदा होगा नहीं, नूर तो पैदा होगा नहीं, आग तो पैदा होगी नहीं। चलो ठीक है। तो इसी तरीके से गाय बैल से मेरे भाई कुत्ता तो पैदा होगा नहीं। अरे हाँ भाई, चलो ठीक है। अब तुमने जो बताया ठीक है, हमने मान लिया तुम्हारी बात को कि नूर का मतलब रोशनी, और ऐसा है। अल्लाह के नबी हिदायत के नूर थे, सच्चाई के नूर थे, ईमानदारी के नूर थे, तमाम इंसानियत के लिए भाई वो नूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। लेकिन नूरी मखलूक नहीं थे, नूर से बने हुए नहीं थे। चलो ठीक है, चलो तुम्हारा हम मान लेते हैं भैया। अगर आप कह देते कि अव्वल और आखिर नबी हैं, तो हम आपसे सवाल करते कि फिर अव्वल है तो कैसे बने हैं। चलो आपने उसका इनकार कर दिया, और लिखने वाले को भी जो आपने बातिल करार दिया, ठीक है। अरे अल्लाह के नबी कैसे बने? हाँ, भाई जैसे तमाम इंसान बने वैसे बने। हाँ ठीक है भाई वो गोश्त से हड्डी है, दो पैर हैं, दो हाथ हैं। हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, हमने आपकी बात मानी, चलो ठीक है। तो मान ली तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है ना।